everyone, welcome back to my channel. I'm Poulani, and in today's video we will learn about monoclonal antibodies, which is a very important topic of immunology. If you like my videos, then please do hit the like button in my videos and subscribe to my channel to never miss any updates on my video. Please support to my channel by subscribing and sharing with your friends, because we are working really hard to bring up good video content to you. So please support me. Okay, so let's begin. Now guys, before understanding what are monoclonal antibodies, how are they produced, everything in detail we will learn in this video of course, but I want to give you a brief idea about what is this. देखो, जैसे एक एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन का जो और एंटीबॉडी है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच करेंगे. सो द एंटीजन एंड एंटीबॉडी दे बोथ हैव पैराटोप एंड एपिटोप. ओके, इनके पास एपिटोप है, ठीक है, जो एंटीजन है उनके पास एपिटोप है, जो एंटीबॉडी है उनके पास जो है पैराटोप है. ये दोनों एक साथ ऐसे अटैच करेंगे तब इनका इंटरेक्शन पॉसिबल होगा, मतलब कैपिंग हो जाएगा. एंटीजन को एंटीबॉडी आके जो है कैप कर देगा, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये जो एंटीजन है ये वापस से जाके जो है बाकी और सेल्स को ये स्टिमुलेट ना कर पाए. ठीक है, जैसे हमारा कैंसरस सेल हो गया. कैंसरस सेल में क्या होता है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सिग्निफिकेंस है, ये सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, बिकॉज देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडीज दैट इज प्रोड्यूस. ओके, दे आर एग्जैक्टली क्लोन ऑफ वन अनदर. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज जाके जो कैंसरस सेल के एंटीजन है, डेफिनेटली कैंसरस सेल के, उसके जो एपिटोप में जाके, इसके पैराटोप जाके उधर अटैच हो जाते हैं. सो दैट द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी, ओके, इट इज बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीजन ओनली. ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो स्पेसिफिक होता है. इस केस में क्या देख रहे हैं, जो मोनोक्लोनल है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, अ सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट. बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोनल होते हैं ये, मतलब एग्जैक्टली सेम, एक दूसरे के ट्विंस होते हैं ये लोग. ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन होती है इन लार्ज नंबर, सो दैट कोई भी ऐसा अगर वैसे डिजीजेस हो, वेर यू नीड जस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी ओनली टू फंक्शन विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, so that the antibody they bind to a specific type of antigen only. In that case we use monoclonal antibodies. Now see what is written out here. The word monoclonal refers to the fact that the antibodies are created in laboratories are cloned. They are the exact same copies of one antibody. Monoclonal antibodies are also called MOABs or MABs. They are the proteins which is made in the laboratories. Okay, these all are made in artificially. एक laboratory में ये सब बनता है. ठीक है, like the antibodies which is produced inside our human body. Okay, that is our natural antibody. But these antibodies, they are made in lab. Okay, now see. Laboratory made monoclonal antibodies helps to stimulate your own immune system. Okay, next you see monoclonal antibodies are clone of just one antibody and they bind to one antigen only. They are specific. Okay, देखो एक एंटीबॉडी है जो एक ही एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेगा. दूसरा देखो, polyclonal antibodies comes from several different types of immune cells and will bind to more than one antigen. ठीक है, नेक्स्ट देखो, when only one clone of B cell is stimulated by a single epitope of an antigen, okay, and then is followed to proliferate and produce antibodies, such as antibodies are called monoclonal antibodies. ठीक है, so there is a one clone of B cell. B cell का क्लोन मतलब हम समझ गए प्लाज्मा सेल. ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, योर एंटीबॉडीज. ओके, दे विल गो एंड बाइंड टू अ सिंगल टाइप ऑफ एपिटोप. एपिटोप कहाँ होता है, एपिटोप हमारे एंटीजन में होते हैं. ठीक है, सो दैट पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी विल गो एंड बाइंड टू द एपिटोप of your antigen. Okay, then they will be allowed to proliferate and they produce antibodies. फिर antibodies का production होगा, okay, which are known as your monoclonal antibodies. Now they are further classified into mouse monoclonal antibody, ठीक है, chimeric monoclonal antibody, humanized monoclonal antibody and human monoclonal antibody. So I hope this slide is clear to you. Let's look at the 4 types of figure which is given in this slide. Okay, now see. First is your mouse monoclonal antibody. ठीक है, that is 100% mouse protein. It contains your 100% derived
माउस प्रोटीन। नेक्स्ट देखो काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 34% माउस प्रोटीन विच इज अ वेरिएबल रीजन। देखो डीप ब्लू में जो है दैट इज योर वेरिएबल रीजन, एंड 66% ह्यूमन प्रोटीन दैट इज योर कांस्टेंट रीजन। जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा हो गया कांस्टेंट रीजन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दैट इज ओनली द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, दैट इज द CDR। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि एकदम टिप में है। ठीक है, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है, दैट वी से एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडी। ठीक है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 10% ऑफ योर माउस एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ह्यूमन डिराइव्ड। ओके, नेक्स्ट देखो ह्यूमन monoclonal antibody. Okay, it is 100% derived from human amino acid and it is best accepted in your मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन ह्यूमन। ठीक है, ये 100% जो है स्काई ब्लू वाला 100% जो है ये ह्यूमन डिराइव्ड है। दैट्स ऑल फॉर दिस लाइन। नाउ सी द एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, देखो सबसे पहले है डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स। लाइक द वाइडेस्ट यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिटेक्शन ऑफ एंटीजन बाय फ्लोरोसेंट डाई एंड एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस बी। ओके, हेपेटाइटिस बी इज अ वेरी डेंजरस इन्फेक्शन। ओके, उसका भी डिटेक्शन हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के हेल्प से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट बाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट योर HCG। HCG इज योर ह्यूमन कोरियोगोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, दूसरा देखो ब्लड ग्रुपिंग कैन बी डन बाय योर anti-A एंड anti-B मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग को भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ट्यूमर डिटेक्शन एंड इमेजिंग बाय यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर ट्यूमर एंटीजन सिक्रीटेड बाय योर ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ट्यूमर सेल्स से जो है हम सिक्रीट करके भी वी कैन डिटेक्ट इट। ओके, नाउ सी postrate specific antigen is one of the example of it. Next देखो tissue typing for transplantation can be done by using anti-HLA। ठीक है, HLA monoclonal antibody। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका क्या है, मॉनिटरिंग लाइक प्रोटीन्स एंड ड्रग्स लेवल्स इन सीरम। ठीक है, ये भी हम जो है इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स एंड क्लोन्स। For example, T helper cells and T cytotoxic cells are identified by using anti-CD4 and anti-CD8 monoclonal antibody used as your immunotoxin। ठीक है, it is used as an immunotoxin। Okay, next देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉन्जुगेट होता है ये बैक्टीरिया एंड केमिकल टॉक्सिन से, फॉर एग्जाम्पल योर डिप्थेरिया टॉक्सिन। ओके, एंड इट इज यूज टू किल द टारगेट सेल्स सच एज योर कैंसर सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखो थेरेपिक यूजेस। द mechanism by which the monoclonal antibody works is as therapeutic agents are your it suppresses the immune system। ठीक है, immune system को भी suppress कर देता है and kills or inhibits the malignant cells, that is your cancerous cells। So I hope this slide is also completely clear in your mind। ठीक है, ये सब तो applications हो गए। Now we will look into what are how they are produced। Okay, the production is the very significant part of this topic। Now let's see that one। So guys, before understanding what is written in the steps out here, I want to make your basics clear। Okay, देखो क्या होता है कि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो भी हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है नेचुरली, दैट इज योर पॉलीक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, अभी हमें चाहिए एक स्पेसिफिक एपिटोप के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडी। सो हम चाहते हैं वो एक ही टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, तब हम उसे बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, मतलब वो क्लोन के हिसाब से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ सी क्या होता है, जो कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, इसको हमें ना ज़्यादा दिन के लिए हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, बट जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्लाज्मा सेल से जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, वी कैन कीप इट फॉर योर 2 to 4 weeks ओनली। तो दैट इज़ अ मच लेस टाइम। पर हम नहीं चाहते कि जो प्रोसीडियर इतना सब परफॉर्म करके हम उसको है ना ज़्यादा दिन के लिए हम उसे प्रिजर्व कर पाए। दैट इज़ आवर एम। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, जब भी एक सपोज मान लो एक माउस है। ठीक है, माउस में हम क्या कर रहे हैं, माउस में हम एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी माइस है, ऑनकोमाइसिस वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, एक
एक्सपेरिमेंट में हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज हैपनिंग, उसका जो स्प्लीनॉइड सेल्स, ये स्प्लीन सेल्स है, आई मीन टू से जो स्प्लीन सेल्स है, स्प्लीन सेल्स में क्या है आपका लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सारी चीज़ें होते हैं जैसे हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि वो जैसे इंट्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो बी सेल के रिसेप्टर है ना, वहाँ पे जाके इसके एपिटोप जो है जाके उसमें बाइंड हो जा रहे हैं। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइड में जो एंटीबॉडी के हैं वो जाके वहाँ पे बाइंड होते हैं। नब आफ्टर बाइंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, जो एमएचसी वहाँ पे रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं उसको, उस चीज़ को, पर्टिकुलर एंटीजन को ले जाके प्रेजेंट करते हैं आपके टी हेल्पर सेल के पास। अभी टी हेल्पर सेल दे फर्दर प्रोड्यूसेस योर साइटोकाइन, सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो जाके वापस से जो है सिग्नल देते हैं किसको, आपके बी सेल को ही सिग्नल देते हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल जाके टी हेल्पर सेल से प्रोड्यूस हुआ जो साइटोकाइंस है या जो भी सिग्नल है, इट विल गो एंड स्टिम्युलेट योर बी सेल विल फर्दर प्रोड्यूस योर टू थिंग्स, फर्स्ट इज योर प्लाज्मा सेल, नेक्स्ट इज योर मेमोरी सेल। अभी ये प्लाज्मा सेल का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, जो कि फर्दर जाके आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इट इज जस्ट फॉर 2 to 4 weeks। बट द मेमोरी सेल, ठीक है, मेमोरी सेल जो है इट विल बी फॉर योर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहता है ना हमारे बॉडी में। लेकिन ये जो एंटायर प्रोसीड्यूर है ना, हम लोग बार बार इस प्रोसीड्यूर को दोहरा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये जो 20 लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, जो कि एक स्प्लीन सेल में होती है, तो हम उस बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, वी मेक अ फ्यूजन ऑफ इट। ठीक है, किसके साथ फ्यूजन करते हैं, हम उसको माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूजन करते हैं। ठीक है, माइलोमा सेल्स के साथ जो है हम उसे फ्यूज करते हैं जिससे कि एक हाइब्रिडोमा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये है एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वो हाइब्रिडोमा जो है एक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी कैन कीप इट। ओके, और उससे हम और भी ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वगैरह जो है हम उससे कर सकते हैं। सो ये आपका है ना, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया क्या है इसमें। ठीक है, अभी देखो, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इम्यूनाइजेशन ऑफ माइस, ठीक है, एंड योर आइसोलेशन ऑफ स्प्लेनोसाइट्स। ठीक है, स्प्लेनोसाइट्स को आइसोलेट करते हैं। अभी देखो, माइस आर इम्यूनाइज्ड विथ एन एंटीजन एंड लेटर देयर blood is screened for antibody production. The antibody producing splenocytes are then isolated for in vitro hybridoma production. ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन कैसे हो रही है। Now see preparation of myeloma cells. देखो, myeloma cells are immortalized cell that are once fused with spleen cell can result in hybridoma which is capable of unlimited growth. ठीक है, उसमें unlimited growth होती है। Myeloma cells are prepared for your fusion process. ठीक है, fusion के लिए। Now this fusion, okay, ये जो माइलोमा सेल्स एंड योर स्प्लेनॉइड्स एंड योर स्प्लेनोसाइट्स का जो दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिडोमा जो है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये PEG के प्रेजेंस में होता है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड। ओके, सो दैट व्हाट इज हैपनिंग, द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ बोथ द सेल दे कैन फ्यूज टुगेदर। ठीक है, वो एक दूसरे से फ्यूज हो सकते हैं। मतलब आपका जो स्प्लेनोसाइट्स है, ठीक है, उसका सेल मेम्ब्रेन एंड योर माइलोमा सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों फ्यूज हो जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका क्लोन स्क्रीनिंग एंड पिकिंग। नाउ द क्लोन्स आर स्क्रीन्ड एंड दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर एंटीजन स्पेसिफिसिटी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास के हिसाब से एंड एंटीजन स्पेसिफिसिटी के हिसाब से हम उसे पिकअप करते हैं। देखो, नेक्स्ट इज योर functional characterization, confirm, validate and characterization. For example, your ELISA एक ऐसे है जिससे हम इसे confirm, validate and characterize करते हैं। ठीक है, next is you see it is scale up and wean. Okay, now the scale up clones producing desired antibodies and the wean of and they wean of the selection ages. ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका expansion, expand clones, okay, producing desired antibodies in your bioreactor or large flask. बायोरिएक्टर के हिसाब से क्या करते हैं, हम इस क्लोन को और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। सपोज यू नीड जैसे आपका कोई भी आपको लाइक कोरोना
coronavirus. Okay, a person is infected with coronavirus, so that time we need a particular type of antibody. ठीक है, जिससे कि हम उसको है ना, हम उस एंटीजन को जो है हम उसको दबा पाए. ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी ही चाहिए, है ना. तो वैसे केसेस में भी जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है ये बहुत आपका काम में आता है. So guys, that is all about the production of monoclonal antibody. I hope this entire slide and in fact the entire video is clear to you. If you have any question or queries, or if you want me to make videos on any other topics, then please do let me know in the comment section below. And please hit the like button if you are liking my efforts. And do share it with your friends. The more you will share, the more support we will get. It will encourage us to make more and more videos for you. And this entire videos, whatever is made, it is made keeping in mind your examination point of view also. So I hope this will be helpful for your exam. And yeah, do subscribe to my channel for more such informative videos. And take care. Bye bye.